Okay, so far we have covered mains questions, isn't it? So let's move on to AEEE questions. ठीक है? तो आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे, right? I think question number 3 we have covered. I guess क्या है basically question number 3 का फंडा? Sin square theta is equal to 4xy upon x plus y का whole square. I think you should have also mentioned something else. ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2002 में आ चुका है. You should have mentioned कि x belongs to x comma y belongs to r plus. Then you know this would have made sense. ठीक है. और वैसे भी it is understood क्योंकि LHS में sin square theta है. तो LHS अगर पॉजिटिव होता तो RHS को भी पॉजिटिव होना जरूरी है. तो वैसे भी अंडरस्टूड है, बट लेकिन he should have mentioned this in the question itself, right? Okay. So anyway ये देखो LHS में ट्रिग्नोमेट्री और RHS में एल्जीब्रा और या algebraic expression, some kind of rational expression है. So whenever we deal with two different types of functions, there is a very good chance कि we could solve this question by simply using range, right? तो हम जानते हैं कि LHS में जो sin square theta है, इसका range हम जानते हैं, isn't it? What is range of LHS sin square theta? Yes, we know that sin square theta जो है वो हमेशा greater than or equal to 0 होता है, yes, but it is always less than or equal to 1, isn't it? ये हो गया LHS का कहानी. If you look at RHS, ये देखो डिनोमिनेटर में है x plus y और न्यूमरेटर में है xy. So we have x plus y and xy in denominator and numerator. So clearly x plus y and xy, clearly he is looking at a and gm, isn't it? X और y के ऊपर he is looking at a and gm. So if you apply a and gm between x and y, isn't this what we get? X plus y upon 2 is always greater than or equal to root xy. ठीक है? So x plus y, if you square it on both sides, whole square is greater than or equal to 4 into xy. तो आपको चाहिए 4xy upon, तो इसको RHS में की तरफ शिफ्ट करेंगे. So in other words it becomes 4xy upon x plus y का whole square is 1 is greater than or equal to this. In other words 4xy upon x plus y का whole square is less than or equal to 1. Sorry, no. Okay. You do this. लगता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है. तो ये जो है ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 है. This should have been always greater than or equal to 1, isn't it? So I think there is an error in this question. शायद से LHS में sin square theta की जगह शायद से cosecant square theta होना चाहिए, I guess. Okay. So this should have been cosecant square theta in LHS. Then it would have been cosecant square theta is always greater than or equal to 1. क्योंकि sin square theta हमेशा less than or equal to 1 होता है, तो cosecant square theta is always greater than or equal to 1. तो LHS greater than or equal to 1 और RHS less than or equal to 1. इसका मतलब LHS और RHS दोनों भी equal to 1 होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि ये हमेशा 1 से बड़ा होगा LHS और RHS हमेशा 1 से छोटा होगा, वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता. इक्वल होने के लिए both have to be equal and both should be equal to 1. This should be equal to 1. Therefore cosecant square theta should be equal to 1 and 4xy upon x plus y का whole square should also be equal to 1. और ये देखो इसका मतलब इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है.
रिमेंबर AMGM में इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, रिमेंबर वी हैव अप्लाइड AMGM हियर। अगर इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा इसका मतलब द टू नंबर्स हैव टू बी इक्वल, राइट? सो एंड मोreover x and y can they be is equal to 0? इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑप्शन सी भी है और ऑप्शन बी भी है, isn't it? Can x and y be equal to 0? 0 होता तो क्या होगा? x और y नहीं। रिमेंबर AMGM अप्लाई कब कर सकते हैं? ओनली व्हेन द नंबर्स आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसका मतलब x and y also cannot be equal to 0, they also cannot be equal to 0 at the same time। इसका मतलब which is the better option here? B is the best option for this question। So a point to be noted here, if you are looking at algebra and trigonometry at the same time, so ये range वाला concept जरूर अप्लाई होगा। और ये जो algebra है ना, इसका मतलब you must have applied AMGM, right? So a very important type of question, लेकिन इसमें ना बहुत सारे mistakes थे question ये question में। अब आते हैं fourth is pretty silly question, isn't it? क्या फाइंड करना है अपने को? 1 minus tan square upon 1 plus tan square। So do we see a formula here? हाँ, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो 1 minus tan square थीटा upon 1 plus tan square थीटा, ये तो बेसिकली है cos 2 times थीटा, माने बेसिकली cos 30 डिग्री, और cos 30 होता है √3 upon 2। That's it, फोर्थ का सी। बहुत ही सिली क्वेश्चन था ये। अच्छा, फिफ्थ भी बहुत सिली क्वेश्चन है, ये तो बहुत पुराने क्वेश्चंस है ना, दैट इज व्हाई दीस आर वेरी इजी। अच्छा, tan थीटा है -4/3, इसे हम बाकी के इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये 4 है और ये 3 है, तो ये ऑब्वियसली 5 होगा। और मेरे को वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी? sin थीटा। अच्छा, तो sin हैज टू बी 4/5। अच्छा, प्लस की माइनस दोनों इज इट? आई मीन वी नॉट श्योर, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन थीटा। सो इसका मतलब दिस कुड बी +4/5 और -4/5। यस, ये भी बहुत सिली क्वेश्चन था। फिफ्थ के आंसर भी ओके फाइन। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। वी हैव बीन गिवन sin अल्फा प्लस बीटा व्हिच इज इक्वल टू 1, ये पहला कंडीशन। अच्छा, sin अल्फा प्लस बीटा 1 हो, तो व्हाट कैन वी से अबाउट अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2। यू जस्ट टेक 90 डिग्रीज। अच्छा, अब ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना कोई इंटरवल वगैरह मेंशन नहीं है। अगर कोई इंटरवल मेंशन नहीं है तो यूजुअली वी गो फॉर द बेसिक वन व्हिच इज 90 डिग्री। अगर इंटरवल वगैरह मेंशन होता देन वी विल गो फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल, जैसे कि इट कुड हैव आल्सो बीन हाउ मच 360 + 90 450, बट एनीवे आई डोंट थिंक इट इज दैट कॉम्प्लिकेटेड, है ना। ये कब आया था? ये भी 2002 में आया था, बहुत पहले। सो एनीवे ये हो गया अपना कंडीशन नंबर 1। और दूसरा कंडीशन क्या है कि sin अल्फा माइनस बीटा है हाफ। सो इसके हिसाब से अल्फा माइनस बीटा क्या हो सकता है? 30, इज इट? अच्छा, ये देखो, और इट कुड हैव आल्सो बी it could have also be 180 minus 30 which is 150, और it could have been 150, है ना। अब ये देखो, तो हम क्या करें कि we'll start, we'll consider the basic ones। अगर इससे आंसर नहीं आ रहा तो आपको तुरंत 150 भी कंसीडर करना होगा। so now this could be a tricky question। anyway, अब ये देखो, ये प्लस बीटा है माइनस बीटा है, अब फाइंड क्या करना है अपने को? वैसे भी we need to find tan अल्फा प्लस 2 बीटा, tan 2 अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ये दो कंडीशन को सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा मिल जाएगा और उठा के एग्जैक्टली उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट्स ऐड 1 and 2। तो 2 अल्फा इज 120 माने अल्फा इज 60। अल्फा 60 होता तो बीटा कितना होगा? 30, इज इट? अच्छा,
फाइंड क्या करना है अपने को, देयरफॉर tan, ये देखो अल्फा प्लस 2 बीटा इनटू tan 2 अल्फा प्लस बीटा, माने tan देखो अल्फा प्लस 2 टाइम्स 30, 60 प्लस 60 विच इज 120 इनटू tan 120 प्लस 30 विच इज 150 है ना। अच्छा ये देखो वी गॉट टू बी केयरफुल हियर, tan 120 का मतलब सेकंड नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। और इसको हम हमेशा 180 माइनस के इसमें सोचेंगे, तो 120 का मतलब 180 माइनस 60, सो माइनस tan 60 विच इज √3, tan 150 का मतलब माइनस tan 30 है ना, 180 माइनस 30, तो ये 1/2, so आंसर हैज टू बी 1, ठीक है। सो 6 का आंसर A, right? So these were asked in 2002. Okay, all the way till 11th question. These are all from 2002. Okay. So pretty easy. इसमें बाकी के सारे easy थे, except this one. This one was pretty cool question. Right? So make correction cosecant square theta LHS. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा ये तो आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस दिस, इजंट इट? ये नंबर और उसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है, इजंट इट? आई मीन यू सी इट इज इन द फॉर्म ऑफ sin square theta plus 1 upon sin square theta, and moreover आपने नोटिस किया ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है, क्योंकि क्वेश्चन में इट इज क्लियरली मेंशन कि थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। if थीटा 0 होता तो फिर ये 0 हो सकता था, माने इनडायरेक्टली यू सी दीज आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो हम जानते हैं कि x plus 1 by x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है करके, therefore y is always greater than equal to 2, राइट? अच्छा इसमें भी थोड़ा सा एरर है, इसमें ऑप्शन में डी इज द बेटर ऑप्शन। इसमें सिर्फ y ग्रेटर देन 2 है ना, इसमें सिर्फ y ग्रेटर देन 2 है, तो करेक्ट द ऑप्शन मेक इट इक्वल टू 2 एज वेल ऑप्शन में। तो 7 का आंसर अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी डी, राइट? क्वेश्चन नंबर 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट, इज इट? a sin x plus b cos x is equal to c। so ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस कब होंगे? जब ये इक्वल टू ये होता ऑब्वियसली, लेकिन हम इसके बारे में जानते हैं, आई मीन वी डू नो समथिंग अबाउट दिस, कि ये हमेशा किसके बीच में लाई करता है? यस, माने c जो है वो हमेशा किसके बीच में लाई करना चाहिए? इसके बीच में, ठीक है। अगर c इसके बीच में लाई करता तब जाके ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, इसलिए ना रिमेंबर c जो है अगर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करना चाहिए, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ c जो है, मैंने इसको थिंक अबाउट दिस वे, इस आंसर में बहुत पहले किया था। से मान लो a एक नंबर है, वो -2 और 2 के बीच में है ना, -2 और 2 के बीच में है, a इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो इसको जब आपने मॉड्यूलस अप्लाई किया तो सारे नंबर्स कहाँ आ जाएंगे? 0 0 2 के बीच में, बट अल्टीमेटली 2 से छोटा होंगे, इसलिए माने इन अदर वर्ड्स मॉड्यूलस ऑफ c जो है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू √a² प्लस b²। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है बट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि मॉड्यूलस ऑफ c इज ग्रेटर देन √a² प्लस b²। मैंने c कभी उससे बड़ा हो ही नहीं सकता, अगर c उसके बड़ा हो गया तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्लियरली इस क्वेश्चन का इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या? विल देयर बी अ सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन? बिकॉज़ RHS जो है वो
इससे बड़ा है, उन्होंने दे रखा है, लेकिन LHS जो है वो इससे हमेशा इक्वल या छोटा होगा। इसका मतलब देयर कैन बी एनी सॉल्यूशन, सो 9th का आंसर हैज टू बी सी, राइट। Okay, next in the line is question number 11. We have been given a trigonometric equation, quadratic in terms of cos. ये किया था क्या हमने? अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और अल्फा किसके बीच में लाई कर रहा? पाई बाय 2 और पाई के बीच में। अरे हाँ, ये तो किया हमने, इसलिए ये हमने किया। sin 2 अल्फा निकालना है। sin 2 अल्फा का फॉर्मूला है 2 sin अल्फा cos अल्फा, तो अपने को sin अल्फा की जरूरत है और cos अल्फा की जरूरत है। ये तो क्वाड्रेटिक है, इसमें से आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक, तो आपको ना cos थीटा के दो वैल्यूज मिलेंगे, 1 और 2। सिंस ही डिड से कि अल्फा लाइज इन व्हिच इंटरवल, पाई बाय 2 टू पाई, माने कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट 2। तो आपको कौन सा वैल्यू कंसीडर करना है? अगर मान लो ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव कंसीडर करना है। एंड रिमेंबर थीटा की वैल्यू अल्फा है, इसका मतलब cos अल्फा विल बी दैट नेगेटिव वैल्यू। उससे आप क्या फाइंड कर सकते हो? sin अल्फा। sin अल्फा नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट लगे? सेकंड। ये जो भी वैल्यूज आया इसमें डाला। ये किया था, आई मीन किया हमने, है ना? तो यू जस्ट रेफर टू आवर नोट्स, राइट। ये शायद से हमने किया था कब? एप्लीकेशंस ऑन क्वाड्रेटिक के वक्त किया था, आई गेस। तो 11 का आंसर आना चाहिए बी। यू कुड चेक योर आंसर, राइट। 15 is one irritating question. I still remember. Let's see. इसका कहानी क्या है? अल्फा एंड बीटा बी सच दैट अल्फा माइनस बीटा जो है वो पाई और 3 पाई के बीच में लाई करता, ठीक है। अच्छा, इफ अच्छा वी हैव बीन गिवन, अरे ये तो वन ऑफ द स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स इफ यू आस्क मी, लेकिन द नंबर्स आर टू बी, isn't it? And cos alpha plus cos beta is -27/65। तो फाइंड क्या करना है अपने को? cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अच्छा ये देखो, if you are smart, two options are already eliminated, is it? दो ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। अल्फा माइनस बीटा कहाँ लाई कर रहा? पाई और 3 पाई के बीच में। तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 किसके बीच में लाई करेगा? अल्फा माइनस बीटा इसका आधा, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 लाई करेगा पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के बीच में। माने कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड या थर्ड? इसका मतलब cos हैज टू बी नेगेटिव, और सिर्फ दो ही ऑप्शंस है, एक है ए और दूसरा है डी, राइट। अब तो 50% प्रोबेबिलिटी है गेस करने का। अच्छा ठीक है, एनीवे शायद से हमने सेम इसी टाइप का एक मेंस क्वेश्चन आया था कल वाला क्लास में, हमने डिस्कस किया इस चीज़ के बारे में कि इसमें क्या है कि जब sin c प्लस sin d दे रखा है और cos c प्लस cos d, तो दो अप्रोचेस होते हैं इसके लिए। एक अप्रोच ये था वेयर वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा बाय 2, देन वी अप्लाइज फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, बट लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? अल्फा माइनस बीटा बाय 2, माने वी आर सपोज टू स्क्वायर एंड ऐड। So the problem is we are looking at some really big numbers. That's the problem. So ये 2 मिनट में करना बहुत मुश्किल है। तो anyway, let's give our best.
लेट्स सी, होपफुली वी नो वी शुड बी एबल टू गेट द आंसर. अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1, इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2 और स्क्वायरिंग और एडिंग, है ना. बहुत ही टिपिकल कॉन्सेप्ट है ये. तो देखो यहाँ sin स्क्वायर अल्फा आएगा, स्क्वायर और ऐड करने से यहाँ cos स्क्वायर अल्फा आएगा, उन दोनों का एडिशन 1, करेक्ट. यहाँ sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा, उन दोनों का एडिशन 1 प्लस ये देखो 2, यहाँ आएगा sin अल्फा sin बीटा और यहाँ आएगा cos अल्फा cos बीटा. So can I say कि it would be basically 2 cos अल्फा माइनस बीटा, सही है, राइट. तो इसको जब स्क्वायर किया तो 2 sin अल्फा sin बीटा आएगा, इसको स्क्वायर किया 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 कॉमन निकाला cos a cos b प्लस sin a sin b is cos a minus. अब RHS में असली कहानी शुरू हो गई है ना. अच्छा ठीक है, बट दिस इज नॉट दैट बिग, यू नो. So 21 का स्क्वायर होता है 441 if I'm not wrong, is it? और 27 का होता है 729, is it? और डिनोमिनेटर में 65 का स्क्वायर, ये अपने पास शॉर्टकट ट्रिक है. 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर 7, 6 7 जा 42, right? So this is what we have ultimately. So ये जो है 2 plus 2 cos alpha minus beta is equal to how much would this come out? 4 5 6 7 0 11, is it? ये क्या? अच्छा अब ये देखो, हम इसको ना ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, देखते हैं एक्चुअली फाइंड क्या करना है अपने को, इस पे हम फोकस करेंगे. दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड. तो अपने को जो मिलेगा एंगल मिलेगा, लेकिन अपने को उसका हाफ एंगल चाहिए, इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए. एंगल है और अपने को हाफ एंगल चाहिए. मैंने अपना वो जो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, स्क्वायर टू हाफ एंगल वाला, उसका क्या फंडा था कि एग्जैक्टली रिमेंबर 1 plus cos थीटा इज बेसिकली 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, इसलिए. अच्छा तो हम एक काम करेंगे, 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है. तो इसमें से अल्टीमेटली cos थीटा बाय 2 क्या रहेगा, रूट ओवर 1 plus cos थीटा अपॉन 2. दिस इज व्हाट वी ऑलवेज कंसीडर. लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिमेंबर एक्चुअली जब हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, दिस कुड बी प्लस माइनस. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा करेंगे, देयरफॉर cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज प्लस माइनस रूट ओवर 1 plus cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, isn't it? अच्छा ये देखो, हमने अभी आइडेंटिफाई किया कि सिंस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 लाइज इन सेकंड एंड थर्ड, दिस हैज टू बी नेगेटिव, है ना. अच्छा अब शायद से बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. क्या आएगा इसमें से, अब 1 2 को डिवाइड डिवीजन में चला जाएगा. 1 plus cos अल्फा माइनस बीटा वुड बी कितना आएगा, हाउ मच वुड दिस बी, कितना 585 वाला अपॉन 422. अच्छा ये इसमें डालेंगे है ना. अच्छा तो ये 585 अपॉन 2 टाइम्स 4225. अच्छा ये देखो शायद उन्होंने कुछ कैंसिल आउट किया है ना. अच्छा 5 तो पक्का कैंसिल होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं. और क्या, अच्छा ये देखो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, अच्छा ऑप्शन डी तो नहीं है ऑब्वियसली, क्यों? ऑप्शन डी में ना क्या है, नीचे में परफेक्ट स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 राइज आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए है इसका. उसके हिसाब से नीचे 130 चाहिए, नीचे 130 का मतलब 2 into 65, और ये तो 65 का स्क्वायर था, बट ये 65 में जाएगा तो ये 65 how many times, 65 how many times, 6 8 are 6 9 are, हाँ 9 are 9 5 45 6 9 54 5 85. तो 65 था, 65 9 are, है ना. इसका मतलब रूट 9 is 3 upon रूट 65 should be your answer. Now this was a nice question.
This is the next question. This was the question, worth solving. Okay, so इसलिए instead of we could have simplified this one को उधर शिफ्ट किया, फिर बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन always keep in mind what we need to find. It's very important that you keep this in mind all the time. 16 एक और irritating question है. We have been given कि u is root over a square cos square theta plus b square sin square theta plus root over a square sin square theta plus b square cos square theta. He is asking us to find difference between maximum and minimum values. So he is asking us to find max minus minimum value of u square. अच्छा, u square का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का डिफरेंस अपने को पता करना है. u square so we need to find u square first. Okay, so let's find u square. U square is equal to, अभी देखो, let's not waste much time here. U square का मतलब ये देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर का मतलब दिस इज लाइक योर a एंड दिस इज योर b. तो पहले आएगा a स्क्वायर, इसके बाद आएगा b स्क्वायर, इसके बाद आएगा 2ab, राइट. तो a स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब देखो यहाँ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा रहेगा, जब इसको स्क्वायर किया यहाँ आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, माने क्लियरली उन दोनों में से बचेगा a स्क्वायर. सिमिलरली इसमें देखो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा भी है, इसका स्क्वायर में b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा भी है, और इसका स्क्वायर में b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है. जब उनको ऐड किया तो आएगा b स्क्वायर. Is it? So basically a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रिजल्ट ये, लेकिन और एक्सप्रेशन क्या है, और भी है 2ab, माने 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट. इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब पूरा रूट, ठीक है. अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टर्म्स होंगे, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a⁴ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, राइट. प्लस जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर cos⁴ थीटा, प्लस जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर b स्क्वायर sin⁴ थीटा, प्लस जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b⁴ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. शायद से मैंने 2-3 स्टेप खा लिया यहाँ, तो प्लीज आप खुद आप इसको नॉर्मली एक्सपैंड करके आप कर सकते हो, ठीक है. इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, राइट. ओके, लेट्स फर्दर सिंपलीफाई दिस. लेट्स सी व्हाट इट इज. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो बाहर है, सेपरेट है, प्लस 2 टाइम्स रूट ओवर. अच्छा, क्या आएगा यहाँ, कुछ प्लग वगैरह कर सकते हैं क्या. ये देखो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो a⁴ प्लस b⁴ इनटू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है. प्लस इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा cos⁴ थीटा प्लस sin⁴ थीटा.
ठीक है। अच्छा u स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओके now this is where we realize कि we could actually do something isn't it? इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते बट यहाँ कुछ कर सकते क्या? एग्जैक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपने पास है ना। ओके सो लेट्स अप्लाई द स्टैंडर्ड रिजल्ट a raised to 4 plus b raised to 4 into sin square theta cos square theta। ये देखो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हम जानते हैं isn't it? We have been discussing in both classes 1 minus 2 sin square theta cos square theta। अच्छा u square is equal to a square plus b square plus 2 root over। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम अगेन। ये sin square theta cos square theta का देखो ये एक एक्सप्रेशन है और यहाँ से sin square theta cos square theta का एक और एक्सप्रेशन आएगा व्हाट इज दैट है ना -2 a square b square। तो ये देखो जब हमने sin square theta cos square theta कॉमन निकाला तो यहाँ अल्टीमेटली आएगा a raised to 4 plus b raised to 4 और यहाँ से -2 a square b square। अच्छा ये तो आइडेंटिटी है। एक कौन सा आइडेंटिटी है a square minus b square का होल स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में कौन है sin square theta cos square theta और क्या बचेगा प्लस a square b square। ये तो बचेगा इसलिए इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज व्हाट वी हैव सो फार। अब इसको ना थोड़ा बहुत एनालाइज करना है। अच्छा इसको सिंपली शायद से हम इससे और ज्यादा सिंपलीफाई नहीं कर सकते है ना। अच्छा पूछा क्या उन्होंने अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और मिनिमम और उन दोनों का सबट्रैक्शन। ठीक है अच्छा तो व्हाट डू वी डू नाउ इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको। सो डू वी हैव एन आइडिया हियर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? इसमें